Hello students, I hope you all are fine and safe. Students, last time we had discussed about the topic diseases, communicable diseases and non-communicable diseases. Today we will discuss about prevention of communicable diseases. Germs of certain diseases stay on articles like clothes, combs, towels and toys used by a patient. All such articles, including the linen and clothing, must be disinfected or boiled to kill the germs. The floor and the walls of the room must be sprayed with a disinfectant. तो जो पेशेंट होता है उसके आर्टिकल्स जैसे क्लोथ्स, कॉम्स, टॉवल्स और टॉयज़ पे क्या आ जाते हैं? जर्म्स आ जाते हैं. तो उन सबको हमें क्या करना चाहिए? डिसइंफेक्ट करना चाहिए या बॉयल करना चाहिए टू किल द जर्म्स. The floor and the walls of the room must also be sprayed with a disinfectant. All cases of infectious diseases must be reported to the civic authorities so that precautions can be taken to prevent their spread in the area. और जहाँ पे infectious diseases ज़्यादा फैल रहा होता है जिस एरिया में, तो वहाँ पे किसको इन्फॉर्म करना चाहिए? सिविक अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना चाहिए जिससे कि उन डिजीज़ से को स्प्रेड करने से हम बचा सकें. Children suffering from any communicable disease should stay away from school till they are fully recovered. और जब तक बच्चे कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, बीमार हो रहे होते हैं, तो स्कूल नहीं जाना चाहिए क्योंकि क्या कर सकते हैं? वो दूसरे बच्चों को भी बीमार कर सकते हैं, उनसे इन्फेक्टेड हो सकते हैं दूसरे बच्चे भी. Progress in the field of medicine and immunization have helped us to get rid of many diseases. जो हमारे मेडिसिन की फील्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रहा है, इम्यूनाइजेशन हो रहा है, तो जिससे हम लोग अपनी इन बीमारियों से बच सकें. We should make efforts to prevent the breeding of germs, personal and environmental cleanliness, prevent the breeding of germs, destruction of mosquitoes and their breeding grounds is the best solution for protection from these dreadful diseases. तो हमें अपने आसपास के एनवायरमेंटल एरिया को क्या रखना चाहिए? एनवायरमेंट को क्लीन रखना चाहिए. और destruction of mosquitoes and their breeding grounds is the best solution for protection from these dreadful diseases. जो मॉस्किटोज़ को डिस्ट्रॉय करके और उनके ब्रीडिंग ग्राउंड्स को जहाँ पे वो ब्रीड करते हैं उसको डिस्ट्रॉय करके हम इन ड्रेडफुल डिजीज़ से बच सकते हैं. नाउ मेथड्स फॉर प्रिवेंशन. हाउसेज शुड बी एयरी एंड ओपन. हाउसेज कैसे होने चाहिए? एयरी होने चाहिए, हवादार होने चाहिए, ओपन होने चाहिए. फ्रेश एयर एंड सनलाइट आर नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स. और उस वहाँ पर क्या आनी चाहिए? फ्रेश एयर और सनलाइट, क्योंकि सनलाइट आर नेचुरल डिसइंफेक्टेंट्स. Mattresses, linen and clothes should be exposed to sunlight from time to time. Mattresses को, लिनन को, क्लोथ्स को धूप लगानी चाहिए टाइम टू टाइम. A supply of clean and germ-free water for drinking and cooking is essential for health. हमें germ-free water पीना चाहिए और कुकिंग भी हमारी germ-free होनी चाहिए, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़रूरी है. Impure water should be boiled for about 10 to 15 minutes and then stored in clean and covered containers. Water filters can also be used for purifying water. Impure water को हमें कितने मिनट्स के लिए बॉयल करना चाहिए? 10 to 15 minutes. And to store in a clean and covered containers. We can use water filters also for purifying the water. Chlorination is a way of purifying huge quantities of drinking water. Chlorination से हम लोग जो बहुत ही ह्यूज मात्रा में, ह्यूज क्वांटिटी में पानी होता है उसको हम क्या कर सकते हैं? प्यूरिफाई कर सकते हैं, because it contains too much chlorine. Germs in milk are killed by pasteurization. The milk is heated at a high temperature for at least half an hour and then cooled down quickly. जो मिल्क में जर्म्स होते हैं उसको हम कैसे किल कर सकते हैं? विद द मेथड ऑफ द पेस्चराइजेशन. एंड व्हाट इज पेस्चराइजेशन? हीटिंग मिल्क एट अ हाई टेम्परेचर एंड क्विकली कूलिंग इट टू किल हार्मफुल जर्म्स. मिल्क को हाई टेम्परेचर पे हीट कर सकते हैं एटलीस्ट हाफ एन आवर, और उसको जल्दी से ठंडा करना होता है जिससे कि क्या होता है? दिस किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया. ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज मस्ट बी prevented in or near your house as they pollute your food and water and act as carriers of disease. Rooms should have wire screens.
Breeding of flies must be prevented in or near your house as they pollute your food and water. जो फ्लाइज़ की रिप्रोडक्शन है, ब्रीडिंग है, उससे हमें बचना चाहिए. हमारे हाउस के आसपास नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमारे फूड को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं और वाटर को भी पोल्यूट करते हैं और वो एक कैरियर बन सकते हैं डिजीज़ के. दे एक्ट एज कैरियर्स ऑफ डिजीज़. तो रूम शुड बी हैव वायर स्क्रीन्स. अभी आप पिक्चर में देखिए, दे आर सम मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग डिजीजेस. नंबर 1, बॉयलिंग, वैक्सीनेशन, कीपिंग द टॉयलेट क्लीन, sunlight and fresh air, using a mosquito net, cleaning house. So these are the methods of preventing diseases. Toilets and bathrooms must be cleaned and disinfected regularly. Toilets और bathrooms को हमें clean करते रहना चाहिए. To stop the breeding of mosquitoes, water must not be allowed to stagnate. मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग को रोकने के लिए या उसके रिप्रोडक्शन को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, बहता हुआ पानी होना चाहिए, पानी रुका हुआ नहीं होना चाहिए. वाई? बिकॉज मॉस्किटोज़ ले एग्स इन स्टैंडिंग वाटर. जो मॉस्किटोज़ हैं वो रुके हुए पानी में एग्स को ले करते हैं. टू डिस्ट्रॉय मॉस्किटो लार्वा, द सर्फेस ऑफ वाटर इन टैंक्स एंड पॉन्ड्स मस्ट बी स्प्रेड विथ ऑयल. मॉस्किटो लार्वा को भी ख़त्म करने के लिए वाटर टैंक्स में, पॉन्ड्स में वी हैव टू स्प्रे ऑयल. यूज़ अ मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो रेपलेंट एट नाइट. मॉस्किटो नेट यूज़ करना चाहिए. मॉस्किटो रेपलेंट जैसे ओडोमोस हो गया वो यूज़ करना चाहिए रात को. किचन्स मस्ट बी रिड ऑफ ऑल इंसेक्ट्स. किचन्स में कोई इंसेक्ट नहीं होना चाहिए, उसको भी डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए. फ्लोर्स मस्ट बी स्वेप्ट एवरी डे. फ्लोर को अच्छे से क्या करना चाहिए, स्वेप्ट करना चाहिए. ड्रेन्स मस्ट बी केप्ट कवर्ड. और ड्रेन्स हमारे हमेशा कवर्ड रहने चाहिए. नाउ वी विल टॉक अबाउट वैक्सीनेशन. Vaccination is another way of protecting ourselves by acquiring immunity against certain diseases. There are vaccines available for diseases like diphtheria, cholera, typhoid, tetanus, polio, measles, mumps, meningitis and hepatitis. And what is vaccination? The act of injecting vaccine to protect against a disease. और ये वैक्सीन हमें कौन सी डिजीज़ से बचाती हैं? डिफ्थेरिया से, कोलेरा से, टाइफाइड से, टेटनस, पोलियो, मीसल्स, मम्स, मेनिंजिटिस एंड हेपेटाइटिस. इन सब से ये वैक्सीनेशन हमें बचाती है. पल्स पोलियो इज़ एन इम्यूनाइजेशन कैंपेन एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1994 टू इरेडिकेट पोलियो बाय वैक्सीनेटिंग. From time to time, all children under the age of 5 are given oral polio drops against polio virus. 1994 में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोलियो का कैंपेन चलाया था जिससे कि हम लोग पोलियो से, बच्चे जो हैं छोटे बच्चे, पोलियो से बच सकें. फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 आर गिवन ओरल पोलियो ड्रॉप्स. तो आपने देखा होगा 5 ईयर्स से कम बच्चों को ये ओरल पोलियो ड्रॉप्स दी गई थी. किसके अगेंस्ट? पोलियो वायरस, जैसे कि उनको पोलियो वायरस ना हो. दिस कैंपेन प्रूव टू बी सक्सेसफुल एंड द इंसिडेंस ऑफ पोलियो इन इंडिया हैज़ डिक्रीज्ड ड्रामेटिकली. और ये कैंपेन बहुत अच्छे से सफल हुआ, सक्सेसफुल हुआ और पोलियो हमारे देश से, इंडिया से बहुत जल्दी ख़त्म होने लगा, डिक्रीज़ होने लगा. वी मस्ट गेट आवरसेल्व्स वैक्सीनेटेड एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दीज डिजीज़ेज़. तो हमें टाइम टू टाइम ये सब वैक्सीनेशन लगाने चाहिए जिससे कि हमें ये सब डिजीज़ नहीं हो. दे आर नेशनल प्रोग्राम्स टू इरेडिकेट कम्युनिकेबल डिजीज़. नेशनल प्रोग्राम्स भी चलाए गए थे, गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं समय समय पर, जिससे कि हम इन सब डिजीज़ से बच सकें. इफ़ वी टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग्स वी कैन स्टे हेल्दी. अगर हम अपना ध्यान रखें और अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखें तो हम अच्छे से हेल्दी रह सकते हैं. वी कैन स्टे हेल्दी. सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर. मतलब रोकथाम इलाज से बेहतर है. Students, now we will talk about the assignment. Fill in the blanks. Number 1, plague and typhoid are caused by bacteria. Number 2, dash is a virus that attacks the immune system of the patient and leads to death. Answer, HIV. Number 3,
Dash is a disease caused by the lack of iron in food. Answer anemia. 4. The spread of communicable diseases can be prevented by dash keeping clean. 5. Vaccination can protect against diseases like polio, measles and dash. Answer mumps. 6. Diseases which spread from a sick to healthy person are called dash disease. Communicable disease. 7. Germs in milk are killed by dash pasteurization. 8. Deficiency of vitamin C causes dash scurvy. 9. Dash is a disease in which the bones become soft. Rickets. Deficiency of iodine in the body causes dash goiter. 11. Beriberi is a disease caused by the deficiency of dash vitamin B1. 12. Night blindness is caused by the deficiency of dash vitamin A. तो बच्चों, जैसे अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, आपको सिलेबस मिल चुका है, आपको सिलेबस मिल गया है, टाइम टेबल मिल गया है, तो आप अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। आपके ये दोनों चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2। तो जितना भी मैंने कॉपी में वर्क कराया, जितने भी मैंने असाइनमेंट्स दिए हैं आपको और रिवीजन वर्क दिया है, वो आपको अच्छे से याद करना है और चैप्टर को भी अच्छे से रीड करना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। बाय चिल्ड्रन।